Hello everyone, good evening to all. Welcome back to my channel, and today we are going to start with the body fluids and circulation. I hope all are doing well and दिल का चैप्टर है तो दिल से स्टार्ट करेंगे. We will complete this chapter in the 3 parts. Okay, this chapter is very important from the need point of view, so aspirants, take it seriously. This chapter is very interesting chapter and one of the most important topics are there. Shall we start? So body fluids. सबसे पहले तो बॉडी फ्लूइड्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? Why do we need the body fluids? We need the body fluids to transport the various substances across our body to the tissues. We need the oxygen, we need the glucose, amino acids. So for the transportation, हर एक टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, तो उस तक पहुंचाने के लिए बॉडी फ्लूइड्स वर्क करते हैं. बॉडी फ्लूइड्स लेकर जाते हैं टिश्यूज तक. फ्रॉम द हार्ट द ब्लड पंप्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ब्लड पंप्स एंड टिश्यूज में न्यूट्रिशंस का डिफ्यूजन होता है. वेरियस न्यूट्रिशंस, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सभी का डिफ्यूजन टिश्यूज में होता है. तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, राइट, दे आर एब्जॉर्ब्ड. तो ये था हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम. की सर्कुलेटरी सिस्टम हमें चाहिए क्यों? ताकि ट्रांसपोर्ट हो सके हमारा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का भी डिफ्यूजन इसी की हेल्प से होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से. ऑलराइट, एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, रिमेंबर देयर आर 2 बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड, one is blood, another is lymph. Alright, lymph is also known as the interstitial fluid. इन दोनों फ्लूइड्स को हम डिटेल में करेंगे. ऑलराइट, एंड इन द लोअर इनवर्टिब्रेट्स, ब्लड तो हमारे में प्रेजेंट है, मीन्स वी आर द वर्टिब्रेट्स, किंगडम कॉर्डेटा, राइट. जो एनिमल किंगडम में सॉरी, दैट इज फाइलम कॉर्डेटा. एनिमल किंगडम एनिमेलिया में टोटल 11 फाइलम्स हैं, जिनमें हम कॉर्डेटा में आते हैं. तो कॉर्डेटा में हमारे पास ब्लड होता है एज अ सर्कुलेटिंग फ्लूइड. ऑलराइट, बट इन केस ऑफ लोअर ऑर्गेनिजम्स, इन द स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, they consist of the water circulatory system. The water is present inside their body and it acts as the transportation system or the circulatory system, right. There is a water vascular system present in them. Sorry, the details of the water vascular system in echinoderms, sponges and coelentrates we will came to know in the kingdom animalia chapter, right. And now we are going to proceed with the blood. Blood composed of 2 parts. Of course, blood is liquid, right. We are talking about fluids. So blood composed of 2 parts, plasma and formed elements.
Plasma and formed elements. Plasma now contributes about 55% of blood, whereas the formed elements, consist of the WBCs, RBCs and platelets, right? Erythrocytes, leukocytes or the platelets, that is thrombocytes, right? Plasma consists of the 55% and formed elements consist of the 45% of the total blood, right? Now, plasma. Plasma is a straw-colored liquid, viscous liquid. मीन्स इसका कलर जो होता है वो थोड़ा सा फीका सा होता है एंड विस्कस होता है. विस्कस मीन्स गाढ़ा होता है, राइट? प्लाज्मा थोड़ा सा गाढ़ा होता है और इसमें से स्ट्रॉ कलर्ड होता है, विस्कस लिक्विड होता है. और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमारे पास आपको पता है आरबीसीज होते हैं, WBCs are present, platelets are present, right? Now plasma में 90 to 92% water present है. प्लाज्मा में 90 to 92% of water is present in the plasma and it composed of 6 to 8% proteins. हमारे प्लाज्मा में कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो 6 to 8% होते हैं. There are 3 important proteins present in the plasma, that is globulin, fibrinogen and the albumin. फॉर्म्ड एलिमेंट्स हम बाद में करेंगे, सबसे पहले प्लाज्मा कंटिन्यू करते हैं. प्लाज्मा में 3 प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन एंड एल्ब्यूमिन. ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन एंड एल्ब्यूमिन. ग्लोबुलिन ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट रखता है. It is responsible for the immune system as it makes the antibodies. Antibodies को हम प्यार से क्या बुलाते हैं? That is immunoglobulins. आपने सुना होगा अमाइनोग्लोबिन A, अमाइनोग्लोबिन B, अमाइनोग्लोबिन A, अमाइनोग्लोबिन G, अमाइनोग्लोबिन M, right? IgG, IgA, IgM. All right, they bring their immune responses. These are the antibodies. All right, and fibrinogen again is a clotting factor. This is the important clotting factor. कोई भी हमारे पास टिश्यू इंजरी है, कोई भी ट्रॉमा है, ब्लड वेसल रप्चर है, तो उसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स कैमुलेट होते हैं, प्लेटलेट का एडिशन होता है, प्लेटलेट एक्टिवेशन होता है, देन दिस इज द क्लॉटिंग फैक्टर. तो ये क्लॉट बनवाता है ब्लड को. वहाँ पर हम नहीं चाहते कि ब्लड फ्लो होता रहे, ब्लड का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर क्लॉटिंग नहीं हो पाई तो ये फैक्टर है हमारे पास फाइब्रिनोजन जो कि क्लॉटिंग करवाता है. ये एक प्रॉपर कैस्केड ऑफ प्रोसेसेस होते हैं. फाइब्रिनोजन इज द फैक्टर, राइट? तो फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग में हेल्प करता है. ऑलराइट, इसको आइस कोएगुलेशन ऑफ ब्लड थोड़ा सा आगे एक्सप्लेनेशन है इसका. एल्ब्यूमिन ये हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है. मीन्स सोडियम पोटेशियम का जो कंसंट्रेशन है हमारे लिक्विड्स में वो मेंटेन करता है ऑस्मोटिक बैलेंस को, राइट? ऑस्मोटिक बैलेंस इज द बैलेंस ऑफ द लिक्विड्स का जो आयनिक बैलेंस है उसका मेंटेनेंस, दैट इज ऑस्मोटिक बैलेंस, राइट? 6 to 8% प्रोटीन्स होते हैं. 3 types of proteins are there, globulins, fibrinogen and albumin. Globulins क्या करवाता है, इम्यून सिस्टम में ये रिस्पॉन्सिबल है. Immunoglobulin A, immunoglobulin G and immunoglobulin M, these are the antibodies. Alright, these are the antibodies and fibrinogen is responsible for the coagulation of the blood because ये हमारे पास क्लॉटिंग करवाता है, ब्लड को क्लॉट करवाता है. तो एक हमारे पास जब क्लॉट बनता है तो ब्लड वेसल्स एक ना
बन जाते हैं, क्लॉट टाइप जब बनता है तो फाइबर्स टाइप बन जाते हैं, ऐसे क्रॉस लाइक ऐसे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे क्लॉट बन जाता है एट द साइट ऑफ इंजरी। ऑलराइट, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है, राइट, एल्ब्यूमिन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्लाज्मा। एंड वन मोर थिंग, प्लाज्मा में हमारे पास कुछ आयन्स होते हैं, दैट इज सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये हमारे पास कुछ आयन्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में। ऑलराइट, now we are starting with the formed elements which contributes about the 45% of the blood, right? Formed elements, we are starting with the RBCs, that is erythrocytes. RBC is also known as erythrocytes. Erythros means red and cyte means cells, means red colored cells. These are the biconcave, इनकी शेप हमारे पास बाइकॉनकेव होती है कुछ इस तरह से, राइट। बाइकॉनकेव शेप है हमारे पास आरबीसीज की, राइट। एंड ये ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, सेंटर में कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। इसकी शेप बाइकॉनकेव अब क्यों है? इसकी शेप बाइकॉनकेव इसलिए है बिकॉज इसकी शेप बाइकॉनकेव, ई न्यूक्लिएटेड, इसमें से न्यूक्लियस बाहर निकल जाता है, न्यूक्लियस बाहर निकल जाता है तो इसमें बहुत सारा सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया इसमें बहुत ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो ऑक्सीजन कैरी ये ज़्यादा करता है, जितना सारा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसमें से न्यूक्लियस बाहर निकल जाता है, राइट। दिस इज ई न्यूक्लिएटेड बाइकॉनकेव, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन कैरी ज़्यादा करता है। एंड इसमें प्रेजेंट होता है हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट, दैट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, HB, right? Hemoglobin. Hemoglobin, heme means iron, right? And globulin means, heme means iron and globulin means chains. There are chains, alpha chains present, 2 alpha chains and 2 beta chains present. Polypeptide chains. ठीक है। Hemoglobin are made up of 2 things. Heme means iron and globulin means polypeptide chains are present. 2 alpha chains and 2 beta chains are present, right? Okay. Hemoglobin जब ऑक्सीजन कैरी करता है, and remember, hemoglobin 4 molecules of ऑक्सीजन को कैरी करता है. 1 hemoglobin carries 4 molecules of oxygen, means 1 hemoglobin carries the 8 atoms of oxygen. 8 atoms of oxygen, right? Understood? This was about the erythrocytes. And इनका जो लाइफ स्पैन है, that is
they have lifespan of 120 days. 120 days. These are most abundant cells in blood. Most abundant cells in blood. Cells in blood. Their count is 5 to 5.5 million per millimeter cube. 5.5 million. Alright. This is the count of RBCs and is very important. Right. And 120 days के बाद जब इनका लाइफ स्पैन खत्म होता है तो ये ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज में जाते हैं. ग्रेवयार्ड मीन्स आप मान लो कि इनका शमशान जो होता है दैट इज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, जहाँ पर इनको दफन किया जाता है आफ्टर देयर डेथ. राइट. सो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज दैट इज क्लीन. Alright. Our next formed element are the WBCs. WBCs, they are also known as leukocytes. Leuko means colorless, whitish in color, and cytes means cells. White cells, white blood cells, that are the leukocytes. Alright. और इनका काउंट होता है 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब. राइट. काउंट आपको याद रखना है बिकॉज काउंट वो पूछ लेते हैं एनसीईआरटी में. यस. तो ये वैल्यूज आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए. ऑलराइट. फॉर्म्ड एलिमेंट्स WBCs की बात हो रही है 6000 to 8000 mm and WBCs are of 5 major types. These are the 5 major types of the WBCs. Alright. So आपको इनको एक निमोनिक से याद रखना है. Never let monkeys eat bananas. That is neutrophils. Lymphocytes, monocytes, eosinophils and basophils. आपको इन्हें इसी सीक्वेंस में याद रखना है. द ट्रिक इज नेवर लेट मंकीज ईट बनानास. राइट. इस ट्रिक में इस सीक्वेंस में हम इनको क्यों याद कर रहे हैं बिकॉज दिस इज द PYQ कि आपको इनकी परसेंटेज याद रखनी है डिक्रीजिंग ऑर्डर में. दैट इज 60 to 65% ये प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रोफिल्स. ऑलराइट. और लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं 20 to 25%. मोनोसाइट्स प्रेजेंट 6 to 8%. राइट. These are 2 to 4% and these are 0.1 to 5%. ठीक है. The most abundant are the neutrophils and the least present are the basophils. Right. Neutrophils, lymphocytes, monocytes, eosinophils and basophils and their functions. ये परसेंटेज आपको याद रखनी है बिकॉज ये एग्जाम में पूछ लेते हैं एंड नीट में बहुत बार पहले भी रिपीट हुआ है ये PYQ. सो रिमेंबर दिस. ऑलराइट. और इनके जो फंक्शंस हैं, neutrophils, basically neutrophils and monocytes, they are involved in the phagocytosis. Phagocytosis means they engulf the bacteria or the foreign particles. Alright. Lymphocytes. There are two types of lymphocytes, that is lymphocytes B and lymphocyte T. T lymphocytes and B lymphocytes.
T lymphocytes and B lymphocytes. They are responsible for the immune system, and B lymphocytes makes the they make the एंटीबॉडीज. ये एंटीबॉडीज बनाते हैं जो बी लिम्फोसाइट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, और टी लिम्फोसाइट्स इनकी हेल्प करते हैं बी लिम्फोसाइट्स की. ऑलराइट. मोनोसाइट्स मैंने आपको बता दिया. एयोसिनोफिल्स एंड एयोसिनोफिल्स ये एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती हैं. इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज हैं इनके. राइट. इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज एलर्जी में एक्टिवेट होते हैं. राइट. बेसोफिल्स का फंक्शन क्या है? बेसोफिल्स हमारे पास थ्री सब्सटेंसेस रिलीज करता है. दैट इज हिस्टामिन, serotonin, and these are very important: histamine, serotonin, and the heparin. Right. Histamine is an allergic. ये allergic response induce करता है. These are also a vasodilator. बेसिकली हिस्टामिन क्या करता है? वेसल्स को डायलेट करता है. वेसल्स को डायलेट करता है तो ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा फ्रॉम द वेसल्स. ऑलराइट. एंड सर्कुलेशन ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन का सप्लाई भी ज़्यादा होगा. राइट. सीरोटोनिन क्या करता है? इट एक्ट्स एज अ वेसोकंस्ट्रिक्टर. ये वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है. इनका जो फंक्शन है हिस्टामिन और सेरोटोनिन का, ये एंटागोनिस्ट है एक दूसरे के. हिस्टामिन क्या करता है? हिस्टामिन वेसल्स को डायलेट करता है और सेरोटोनिन वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है. ऑलराइट. Heparin acts as an anticoagulant present in the blood. This is the natural anticoagulant present in the blood. Alright. एंटीकोएगुलेंट है हमारे पास हेपेरिन. हेपेरिन क्या करता है? खून को बॉडी में जमने नहीं देता. ये हमारे ब्लड में नेचुरली प्रेजेंट होता है. हेपेरिन वेरी इंपॉर्टेंट. दीज ऑल आर थ्री एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ दीज आर एक्चुअली दी types of the WBCs, and they are granulocytes and agranulocytes. Right. Monophils and basophils. Lymphocytes and lymphocytes and monocytes are the agranulocytes. इनका मीनिंग है लिम्फोसाइट्स जो मोनोसाइट्स है वो अग्रेनुलोसाइट्स हैं, और जो न्यूट्रोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड एयोसिनोफिल्स. These are the granulocytes. इनमें ग्रेन्यूल्स, छोटे से ग्रेन्यूल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं. ग्रेनुलोसाइट्स में, न्यूट्रोफिल्स में, बेसोफिल्स में और WBC आयोसिनोफिल्स में. इन तीनों में ग्रेन्यूल टाइप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल्स में, हमारे ल्यूकोसाइट्स में. राइट. ग्रेन्यूल्स जिनमें प्रेजेंट होते हैं इन तीनों में प्रेजेंट होते हैं, और इन दोनों में लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं. तो इनको हम बोलते हैं अग्रेनुलोसाइट्स. जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स. दीज आर द कैटेगरीज. कैटेगरी वाइज हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स. ऑलराइट. नेक्स्ट,
एंड पीएच ऑफ ब्लड। एक मिनट, ब्लड हमारी बॉडी में कितना प्रेजेंट होता है? 12 to 16 ग्राम पर 100 ml पर 100 ml, ठीक है। दिस इज द क्वांटिटी ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन आवर बॉडी, राइट। और ब्लड का पीएच कितना होता है? पीएच 7.4 फॉर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड and 7.2 for deoxygenated blood. Alright, and coming on to the type third of the formed elements, that are the platelets. Platelets or thrombocytes, ठीक है। इनको हम मेगा कैरियोसाइट्स भी बोलते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स। ऑलराइट, ये 1.5 लाख से कितना होता है? अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है, राइट। मेगा कैरियोसाइट्स, मेगा मीन्स बिग, ठीक है, मेगा मीन्स बहुत बड़ा, और कैरियर मीन्स न्यूक्लियस। जो हमारे पास प्लेटलेट होते हैं वो एक्चुअल्स में सेल्स नहीं होते, एक बहुत बड़ा सेल होता है हमारे पास, दैट इज मेगा कैरियोसाइट। तो ये जो सेल्स है, जो प्लेटलेट है हमारे पास, उस मेगा कैरियोसाइट के टुकड़े होते हैं, फ्रेगमेंट्स। बेसिकली द प्लेटलेट्स आर दी फ्रेगमेंट्स ऑफ द मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोट्स एक बहुत बड़ा सेल है हमारे पास, मेगा कैरियोसाइट, तो उनके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं दैट आर द प्लेटलेट्स। ऑलराइट, दीज ऑल आर फाउंड इन द बोन मैरो, ठीक है। WBCs, RBCs, इन सभी का हीमोपोइसिस इज द एक्चुअली हीमोपोइसिस मीन्स formation of WBCs, RBCs and platelets in bone marrow, right? इनके फॉर्मेशन को हम हीमोपोइसिस बोलते हैं। दिस इज द प्रोसेस बाय विच द फॉर्मेशन ऑफ WBCs, RBCs एंड द प्लेटलेट टेक्स प्लेस। ऑलराइट, मेगा कैरियोसाइट्स, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, तो इनका जो मेन फंक्शन होता है दैट इज फॉर द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल कोई ट्रॉमा है, कोई इंजरी है, तो उसमें कैसे क्लॉटिंग होगी? दिस इज द फिनोमेना बाय द प्लेटलेट्स, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। टिश्यू फैक्टर्स होते हैं हमारे पास। ऑलराइट, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में एक्चुअली हमारे पास 13 फैक्टर्स डिस्कवर हुए थे। कितने फैक्टर्स डिस्कवर हुए थे? 13 फैक्टर्स डिस्कवर हुए थे। इसमें से बाद में पाया गया कि एक फैक्टर जो है वो एलिमिनेट कर दिया गया था, दैट इज फैक्टर 6 को हमने एलिमिनेट कर दिया था बिकॉज दैट वाज नॉट इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग। ऑलराइट, तो क्लॉटिंग में जो टोटल इन्वॉल्व थे दैट आर 12। Now we have the 12 factors which are responsible for the coagulation of the blood, ठीक है। सबसे पहले टिश्यू फैक्टर आता है, ठीक है। टिश्यू फैक्टर जो है वो प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करता है, तो प्लेटलेट आके उसमें, अब सबसे पहले कोलेजन आता है। कोई भी हमारे पास ब्लड वेसल है, इसकी इंजरी हुई तो यहाँ पर कोलेजन आता है, तो कोलेजन क्या करता है? प्लेटलेट्स को यहाँ पर अक्यूमुलेट करवाता है, तो यहाँ पर आते हैं प्लेटलेट्स आते हैं यहाँ पर, ठीक
ठीक है, दीज आर द प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट यहाँ पे आते हैं, तो अपना फंक्शन जो है वो स्टार्ट करते हैं। प्लेटलेट में हमारे पास, मैंने बोला आपको, टोटल कितने फैक्टर्स हैं, 12 फैक्टर्स हैं। डिस्कवर 13 हुए थे, बट एक डी जनरेट हो गया, एक हमने एलिमिनेट कर दिया, टोटल कितने बचे, 12 फैक्टर्स बचे। ठीक है, इनके हिसाब से हमारे पास कोएगुलेशन ऑफ ब्लड होता है। सबसे पहले तो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है हमारे पास। टिश्यू फैक्टर एक्टिवेट, एक्चुअली इनमें 2 पाथवेज होते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। दे आर अगेन नेक्स्ट लेवल है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है हमारे पास पहले, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ऑलराइट, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करवाता है, एक्टिवेट करता है। दिस इज अ टाइप ऑफ कैस्केड प्रोसेस। कैस्केड होता है ना, एक टिश्यू फैक्टर आता है तो वो दूसरे टिश्यू फैक्टर को एक्टिवेट करवाता है, दूसरा तीसरे को एक्टिवेट करवाता है। ये सभी ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, बट इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो 1 बाय 1 ये फैक्टर्स एक्टिवेट होते रहते हैं। दैट मीन्स दिस इज अ कैस्केड प्रोसेस। एक के बाद एक एक्टिवेट करते हैं, ये एक दूसरे को एक्टिवेट करवाते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन आया, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन ने एक्टिवेट करवाया थ्रोम्बो, टिश्यू फैक्टर ने एक्टिवेट किया थ्रोम्बोप्लास्टिन को, थ्रोम्बोकाइनेज, काइनेज। तो थ्रोम्बोकाइनेज ने क्या किया, थ्रोम्बोकाइनेज ने एक्टिवेट करवाया, ये पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोकाइनेज है, थ्रोम्बोप्लास्टिन से थ्रोम्बोकाइनेज, देन प्रोथ्रोम्बिन। हमारे पास फैक्टर होता है प्रोथ्रोम्बिन, जो इनएक्टिव स्टेट में होता है। प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में। ऑलराइट, and thrombin is responsible for the activation of the fibrinogen. Remember fibrinogen? Here comes the role of fibrinogen. Fibrinogen, तो प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म, थ्रोम्बोकाइनेज ने एक्टिवेट किया तो और इसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। तो थ्रोम्बिन ने क्या किया, फाइब्रिनोजन जो कि इनएक्टिव स्टेट में था, ये हमारे पास प्रोटीन था। रिमेंबर प्लाज्मा में प्रोटीन प्रेजेंट था, हमने किया था वहाँ पे, अभी किया हमने। फाइब्रिनोजन इनएक्टिव स्टेट में होता है, तो थ्रोम्बिन आकर इसको एक्टिवेट करता है, फाइब्रिन का फॉर्मेशन करता है। फाइब्रिन आर द एक्चुअल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच कोएगुलेट हियर। ऐसे करके यहाँ पर कोएगुलेट करते हैं और यहाँ पर ऐसे क्लॉट फॉर्मेशन होता है। दिस इज द क्लॉट फॉर्मेशन एंड दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर दी फाइब्रिन्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसे क्लॉट बनाते थे, तो इंजरी रिकवर होती है। ऑलराइट, डन विद द कोएगुलेशन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कैल्शियम। कैल्शियम इज द मेजर फैक्टर इन्वॉल्व इन इट। कैल्शियम, calcium itself is a factor. Calcium is very important for the coagulation, and in the whole process of coagulation vitamin K plays an important role. Up to the level of NCERT, this is written as NCERT and no need to go into depth. Vitamin K, only vitamin that is responsible for the coagulation of blood is the vitamin K. Okay, all right. Now एक सिस्टम आज हमने और कवर करना है, दैट इज ब्लड ग्रुप्स. ऑलराइट, oh sorry. There are many types of blood groups discovered till now. The most important is the ABO blood group system. ABO blood group system
and RH blood grouping, right? These both are very important systems of blood grouping, alright? और हमने यही स्टडी करने हैं. वैसे तो MN सिस्टम भी है ब्लड ग्रुपिंग का, बॉम्बे सिस्टम भी है ब्लड ग्रुपिंग का, बट हमने ये दोनों स्टडी करने हैं, ABO ब्लड ग्रुपिंग एंड RH सिस्टम. ऑलराइट, ABO इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड RH इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो वन बाय वन वी विल गोइंग टू स्टार्ट दिस. हमारे जो RBCs होते हैं, हमारे जो RBCs होते हैं, सिंपली RBCs, सपोज दीज आर RBCs, ड्राइंग पे मत जाओ. सपोज दिस इज एन RBCs और इसकी जो सरफेस है, इसकी जो मेम्ब्रेन है, उस पर कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं. ऑलराइट, तो उसके हिसाब से ब्लड ग्रुप की डिटर्मिनेशन होती है, जो भी एंटीजन प्रेजेंट होता है. कितने टाइप के एंटीजन होते हैं हमारे पास? एंटीजन ए, एंटीजन बी. 2 टाइप्स के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी. अगर तो इस पर एंटीजन ए प्रेजेंट है, ऑलराइट, अगर RBCs के सरफेस पर, RBCs की मेम्ब्रेन पर अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन ए प्रेजेंट है, तो द ब्लड ग्रुप विल बिकम ए. ऑलराइट, और अगर इसकी मेम्ब्रेन पर एंटीजन बी प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप इज द बी. और अगर इसकी मेम्ब्रेन पर इन केस ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है, they both are present on the RBC's membrane, the blood group will become AB. Alright, and if none of these 2 antigens are present on the RBCs, means no antigen is present on the RBC's membrane, the blood group will become O. Now, antigens are present. What are the antigens? Antigens are these substances which induce immune responses. ये immune responses करवाते हैं. Means अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होंगी. ऑलराइट, अगर इसमें एंटीजन ए प्रेजेंट है तो इनमें एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होंगी. ऑलराइट, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं. अगर यहाँ पर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो यहाँ पर एंटी बी प्रेजेंट होंगी एंटीबॉडीज. राइट, यहाँ पर एंटी ए एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी. ऑलराइट, और यहाँ पर कोई भी, दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है RBCs पे सरफेस पर, तो इसके पास एंटीबॉडी ए भी होगी और एंटीबॉडी बी भी होगी. राइट, इसके पास दोनों है. इसके सरफेस पर, इस RBCs के सरफेस पर ए भी एंटीजन प्रेजेंट है और बी भी एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसके पास कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होंगी. ऑलराइट, डन. तो इस तरह से हमारे पास होते हैं. आप ये पढ़ोगे मेंडेलियन का, जेनेटिक्स में है हमारे पास मेंडेलियन लॉज. मेंडेलियन लॉज में हमारे पास कोडोमिनेंस का लॉ होता है. कोडोमिनेंस, तो RBCs के केस में जब दोनों आती हैं एक ही सरफेस पे RBCs पर और ए बी ब्लड ग्रुप बनता है, तो दिस इज द केस ऑफ कोडोमिनेंस. means A is also dominating and B is also dominating and the blood group will become AB. Alright, ठीक है. Three alleles are present, A, B, right? Antigen, B antigen. समझ में आई? RBCs के सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंट है और उसके ऑपोजिट एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी. राइट, इस पर अगर ए है तो इसकी एंटीबॉडीज अगेंस्ट होगी एंटी बी. ठीक है, तो ये ऐसे फॉर्मेशन होती है एंटीबॉडीज का और ऐसे ब्लड ग्रुप डिफाइन होते हैं. ठीक है, ऑलराइट. अब आप ये देखो कि ए वाला ब्लड ग्रुप, जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो अब हम दोनों सिस्टम्स को, ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने से पहले AB सिस्टम को और RH सिस्टम को, दोनों को चेक करते हैं, रेसिपिएंट का भी और डोनर का भी. ऑलराइट, तो इसमें चेकिंग होती है तब एंटीजन और एंटीबॉडी ही देखे जाते हैं.
भी है हमारे पास, मैंने आपको बताया कि अगर एंटीजन ए भी प्रेजेंट है इसमें और एंटीजन बी भी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप विल बिकम ए बी। तो ठीक है, तो इसमें इस केस में हमारे पास कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होंगी, देयर विल बी नो एंटीबॉडीज प्रेजेंट ऑन इट, नो एंटीबॉडीज प्रेजेंट ऑन इट। तो ये किसी से भी ब्लड रिसीव कर सकता है, ए से भी कर सकता है, ए से भी कर सकता है, बी से भी कर सकता है और ओ से भी ब्लड रिसीव कर सकता है, क्योंकि इसके आसपास इसमें हमारे पास कोई एंटीबॉडीज नहीं होती, क्योंकि इसके आरबीसीज पर दोनों एंटीजन है, तो कोई भी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता एंड हम इसको कोई भी ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। ऑलराइट, एंड ओ ब्लड ग्रुप, इन द केस ऑफ ओ ब्लड ग्रुप हमारे पास इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता और दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी, दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं और एंटीजन कोई भी प्रेजेंट नहीं होता। एज इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता तो ये होता है हमारे पास यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, तो हम इसको इजीली डोनेट कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, किसी भी ब्लड ग्रुप के इंडिविजुअल को ओ ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडीज तो हैं तो बट एंटीजन है नहीं जिसके साथ वो रिएक्ट करेगा, सो दैट्स व्हाई। अब आरएच सिस्टम में क्या होता है, आरएच ब्लड ग्रुपिंग में आरएच सिस्टम में हमारे पास एक एडिशनल एंटीजन प्रेजेंट होता है, दैट इज एंटी डी, ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डी, ठीक है। ये सबसे पहले हमने कहाँ पर देखा था, रिहर्सस मोंकी में, रिहर्सस मोंकी में सबसे पहले ये एंटीजन देखा गया था, रिहर्सस मोंकी में। ठीक है, हमने इस एंटीजन को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था इसमें, रिहर्सस मोंकी में, जो हमारे पास नॉर्मल मोंकी है। तो एंटी डी प्रेजेंट है, ठीक है, एंटी डी इज द एंटीजन प्रेजेंट ओवर द सरफेस, और ये 80% ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है, 80% ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है। तो 80% ह्यूमंस आर RH पॉजिटिव, एंड रेस्ट ऑफ द पीपल आर RH नेगेटिव। ठीक है, 80% ह्यूमंस में एंटी डी प्रेजेंट होता है, दीज आर कॉल्ड द RH पॉजिटिव, और जिनमें प्रेजेंट नहीं होता है दे आर कॉल्ड द RH नेगेटिव। ऑलराइट, जो RH एंटीजन है हमारे पास, RH एंटीजन है हमारे पास, इनकी जो एंटीबॉडीज होती है एंटी डी प्रेजेंट, RH है हमारे पास, तो इसमें क्या होता है, ये होती है IgG टाइप की, IgG टाइप की होती है, तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं, दीज कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। इनका बहुत स्मॉल साइज होता है बिकॉज दीज आर वेराइटी ऑफ IgG टाइप, ठीक है, अमाइनोग्लोबुलिन G, ठीक है, और ये बहुत छोटी है, इनका साइज बहुत छोटा है, तो वो प्लेसेंटा के थ्रू पास हो सकती हैं फ्रॉम दी मदर टू दी फीटस। ऑलराइट, और इसी में हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है, दैट इज RH इनकम्पैटिबिलिटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द नीड पॉइंट ऑफ व्यू। RH इनकम्पैटिबिलिटी, RH इनकम्पैटिबिलिटी, इसमें क्या होता है, जब फादर इज RH पॉजिटिव एंड मदर इज RH नेगेटिव, अगर मदर के ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है और फादर का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है एंड फीटस
फीटस है हमारे पास, और फीटस का ब्लड ग्रुप भी इन केस RH पॉजिटिव हुआ तो दिस लीड्स टू एन RH इनकम्पैटिबिलिटी केस. ऑलराइट. फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है और मदर का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है और फीटस जो उनकी वूम में है उनका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, तो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में क्या होता है, देयर इज़ अ वेल डेवलप्ड प्लेसेंटा. ठीक है, तो प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है. तो प्लेसेंटा के दौरान प्लेसेंटा से ब्लड क्रॉस नहीं करता. दिस इज मदर्स ब्लड एंड दिस इज फीटल ब्लड. ठीक है, इसमें RH नेगेटिव है और दिस इज RH पॉजिटिव. fetal blood is RH positive and mother's blood is RH negative. These are well separated by placenta and during the first pregnancy ये आपस में वेल सेपरेटेड होते हैं प्लेसेंटा के थ्रू और इनका इंटरमिक्सिंग नहीं होता. मीन्स मदर का ब्लड कभी भी फीटल के ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आता. और जैसे ही इनका ब्लड, बिकॉज एंटीजन D is something new for the mother's immune system. if एंटीजन D का एक्सपोजर हो गया मदर के ब्लड के साथ, तो ये मदर का ब्लड RH एंटी डी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज क्रिएट करेगा मदर का ब्लड. बिकॉज मदर के ब्लड के लिए ये न्यू है. दीज एंटीजन्स आर न्यू फॉर द मदर्स ब्लड. ऑलराइट, तो मदर के ब्लड के लिए ये न्यू है, तो इसके इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होएगा. एज इम्यून सिस्टम बिकम्स एक्टिवेट, इट विल फॉर्म द एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH पॉजिटिव. ठीक है, तो RH पॉजिटिव के अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज डेवलप करेगा. RH बॉडीज के अगेंस्ट जब एंटीबॉडीज डेवलप करेगा तो ये इसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है. ठीक है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है, दे आर वेल सेपरेटेड, बट ड्यूरिंग द पार्चुरेशन के प्रोसेस के टाइम जब डिलीवरी होती है तब मदर का ब्लड और फीटल का ब्लड जो है वो कांटेक्ट में आते हैं. अगर मदर का ब्लड और फीटल का ब्लड कांटेक्ट में आए तो मदर का ब्लड क्या करेगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप करेगा. बट फीटल इज नाउ सेफ बिकॉज फर्स्ट प्रेगनेंसी में फीटस इज सेफ. बट प्रोग्रेसिव प्रेगनेंसी में क्या होगा, प्रोग्रेसिव प्रेगनेंसी में मदर के ब्लड ग्रुप में पहले ही RH पॉजिटिव के अगेंस्ट प्रेजेंट होंगी एंटीबॉडीज. ठीक है, तो अगर प्रेजेंट होगी एंटीबॉडीज देन दे विल अटैक एंड डिस्ट्रॉय द सेकेंड फीटल RBCs. ठीक है, mother's blood will destroy the fetus RBCs because there will be the presence of the antibodies against the RH positive. ठीक है, तो हम क्या करते हैं ट्रीटमेंट के दौरान, हम इसमें रोहोगम देते हैं जो कि एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं होने देता मदर के ब्लड में ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी, इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट प्रेगनेंसी. ठीक है, जैसे ही फर्स्ट प्रेगनेंसी खत्म होती है पार्चुरेशन के बाद हम क्या करते हैं, हम रोहोगम देते हैं. तो रोहोगम से क्या होता है, उससे फॉर्मेशन नहीं हो पाता. जो हमारे पास एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन मदर के ब्लड में होता है तो वो नहीं हो पाता, तो अगली प्रेगनेंसी जो है वो सेफ जाती हैं. ठीक है, और इनका डिस्ट्रॉय होना सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान फीटल RBCs का डिस्ट्रॉय होना बाय मदर्स ब्लड, दैट इज द केस नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोइड फेटालिस. दैट इज एरिथ्रोब्लास्टोइड फेटालिस. Right? This is very important from the exam point of view. Immediately after the first pregnancy, immediately after the parturition, मदर को हम इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए रोहोगम देते हैं ताकि वो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन ना हो पाए. तो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन अगर नहीं होगा तो आगे की प्रेगनेंसी जो है वो सेफ जाएंगी. अदरवाइज
जो इनमें प्रेजेंट हो गए एंटीबॉडीज़, तो वो इनको फीटल आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे। फीटल आरबीसीज को जब वो डिस्ट्रॉय कर देंगे तब एरिथ्रोब्लास्ट फेटालिस का केस आएगा, ठीक है। और दैट इज फीटल को क्या होगा, फीटल को जॉन्डाइस भी हो सकता है, ठीक है, बिकॉज एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन होगा आरबीसीज का, और फीटल की डेथ भी हो सकती है, और उसको जॉन्डाइस तो होगा ही, ठीक है। So now we will going to read the NCERT of these two topics. हमने यहाँ तक आज कवर किया है, तो लेट्स रीड द क्विकली। You have learned that all living cells have to be provided with nutrition, oxygen, and other essential substances. Also, the waste or the harmful substances produced have to be removed continuously for the healthy functioning of the tissues. Removal होना ज़रूरी है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो भी हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं, मतलब अमोनिया होता है, उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनका निकलना ज़रूरी होता है। तो वो कैसे होता है, सर्कुलेशन के थ्रू होता है। इट इज़ देयर फॉर एसेंशियल टू हैव द एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ दी सब्सटेंसेस टू द सेल्स एंड फ्रॉम द सेल्स। सेल्स को देना और सेल्स को सेल से लेना, बहुत सारे सिस्टम्स इनमें क्या होता है, सेल्स में से जो हमारे सब्सटेंसेस लेना और सेल्स को देना। सब्सटेंसेस किसके थ्रू होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू, बाय सर्कुलेशन के थ्रू होता है, ठीक है। सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट सर्कुलेट वाटर, वाटर सर्कुलेशन करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग देयर बॉडी कैविटीज़ टू फैसिलिटेट द सेल्स टू एक्सचेंज दी सब्सटेंसेस। सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है वाटर, तो सराउंडिंग्स में से एक्सचेंज कर लेते हैं। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स यूज द स्पेशल फ्लूइड्स विद देयर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल। ब्लड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स फॉर द पर्पस। ह्यूमन्स में क्या होता है, ब्लड होता है। Another body fluid, lymph, also helps in transport of substances. ठीक, all right. Blood is a special connective tissue. Blood is a special connective tissue. All right, consisting of fluid matrix, plasma, or the formed elements. It is a type of specialized connective tissue. Right. Plasma contributes about 55%. Plasma is a straw-colored viscous liquid. Nearly 55% of blood, 92% of plasma is water, and proteins contribute 6 to 8% of it. Fibrinogen, globulin, and albumin are the major proteins. Fibrinogens are involved in clotting or the coagulation of blood. Globulins primarily involved in defense mechanism of the body, and albumins helps in osmotic balance. As I have told you, these are the lines of the NCERT. Plasma also contains small amounts of minerals like the sodium, calcium, magnesium, glucose, amino acids, lipids, etc. also present in the plasma, as they are always transit in the body. Factors for the coagulation or the clotting of the blood are also present in the plasma in an inactive form. ये जो प्रेजेंट होते हैं हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, तो कैस्केड प्रोसेस के थ्रू धीरे धीरे एक्टिवेट होते हैं। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर, ओह दिस पॉइंट, प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। अगर प्लाज्मा में से हम क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस करते, फाइब्रिनोजन को माइनस कर दें, तो हमारे पास सीरम आएगा। ऑलराइट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ PYQ। ऑलराइट, कैमल्स एंड लामा, न्यूक्लिएटेड आरबीसीज, इनमें जो होते हैं कैमल्स में और लामा में, इनमें हमारे पास न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होते हैं, तो रिमेंबर दिस ऑल्सो। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन बॉडी। अ हेल्दी एडल्ट मैन हैज़ ऑन एन एवरेज 5 million to 5.5 million ऑफ आरबीसीज, ठीक है। आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन होता है। मेच्योर आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, मीन्स इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। मोस्ट ऑफ द मैमल्स आर बायकॉन्केव इन शेप। ऑलराइट, they have red colored iron containing complex protein called hemoglobin, hence the color and name of these cells. A healthy individual has 12 to 16 grams of hemoglobin in every 100 ml of blood. These molecules play a significant role in transport of respiratory gases. RBCs have an average lifespan of 120 days, after which they are destroyed in the spleen. Actually, this is a basic introduction, so that's why these are the NCERT lines which I have covered. Alright. Leukocytes are also known as WBCs.
ठीक है. दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट तो कलरलेस है. दे आर न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस प्रेजेंट है इनमें. एवरेज नंबर कितना है 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड. ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड. इनका लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है. दे हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ WBCs, ग्रेनुलोसाइट्स, ऑर्गेनुलोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, आयोसनोफिल्स एंड बेसोफिल्स आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स. इनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. देखिए इनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और आयोसनोफिल्स में छोटे छोटे से ये ग्रेन्यूल्स नज़र आ रहे हैं आपको, छोटे छोटे से, है ना. बेसोफिल्स और आयोसनोफिल्स में से भी छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. आयोसनोफिल्स में ये बायलोब्ड न्यूक्लियस होता है. ऑलराइट. तो इनकी परसेंटेज आपको अच्छे से याद करनी है. ठीक है. न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट 6 to 8% होते हैं. आर फैगोसाइटिक एक्टिविटी होती है इनकी विच डिस्ट्रॉय द फॉरिजन ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग द बॉडी. बेसोफिल्स सिक्रीट द हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपारिन. ऑलराइट. हिस्टामिन क्या है? वेसोडाइलेटर. सेरोटोनिन वेसोकंस्ट्रिक्टर एंड हेपारिन इज एन एंटीकोएगुलेंट. दिस इज ऑल्सो अ PYQ. ठीक है. आयोसनोफिल्स 2 to 3% प्रेजेंट होते हैं. इन्फेक्शंस को रोकते हैं and are associated with allergic reactions. Lymphocytes 20 to 25% present होते हैं. Major types B and T forms होती हैं. Both T and T lymphocytes are responsible for immune responses of the body. Right? 20 to 25% है. Alright. Platelets जैसे कि मैंने आपको बताया इनको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं. ये बहुत बड़े मेगाकैरियोसाइट होते हैं, स्पेशल सेल उससे प्रोड्यूस होते हैं. ये टुकड़े होते हैं मेगाकैरियोसाइट के. दीज आर द सेल फ्रेगमेंट्स. ठीक है. इनका नंबर कितना है, काउंट कितना है? दैट इज़ 1.5 लाख से 3.5 लाख. प्लेटलेट कैन रिलीज अ वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस मोस्ट ऑफ विच हेल्प्स इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं. रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू द क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स. इनका अगर रिडक्शन हो जाए तो हेमरेज हो सकता है. हेमरेज क्या है? इंटरनल ब्लीडिंग इज कॉल्ड हेमरेज. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल प्लेटलेट कम है हमारे पास, तो अगर प्लेटलेट कम होगे तो हम कोई भी ब्लड वेसल है तो इसकी इंजरी होगी तो वो उस क्लॉट नहीं कर पाएगा. ठीक है. वो तो ब्लड बहता जाएगा तो वो अंदर ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी. दैट इज़ कॉल्ड हेमरेज. ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, RH ग्रुपिंग एंड द कोएगुलेशन. दिस इज़ वेरी इजी, सो वी विल रीड दिस. RH ग्रुपिंग. अनदर एंटीजन, एक और एंटीजन होता है हमारे पास, दैट इज़ ऑरेंज एंटीजन which is similar to the present in rhesus monkey. First discovered in rhesus monkey. Is also observed on the surface of RBCs of majority, means 80% of the humans. Such individuals are called RH positive and those in which the antigen is absent are called RH negative. If exposed, RH positive blood will form the specific antibodies against RH antigens. ठीक है. अगर कांटेक्ट में आए ये ब्लड ग्रुप तो RH पॉजिटिव जो हमारे पास पॉजिटिव होता है, RH एंटीजन प्रेजेंट होता है, तो वो अगर RH नेगेटिव के कांटेक्ट में आ रहा है तो उसके अगेंस्ट वो RH नेगेटिव वाला उसके अगेंस्ट क्या बनाएगा? एंटीबॉडीज़ का डेवलप करेगा. देयरफॉर RH ग्रुप शुड ऑल्सो बी मैच्ड बिफोर द ट्रांसफ्यूजन्स. A special case of RH incompatibility has been observed between RH negative blood of a pregnant mother with RH positive blood of the fetus. अगर RH नेगेटिव ब्लड है मदर का और फीटस का है RH पॉजिटिव, दैट इज़ द केस ऑफ RH incompatibility. RH antigens of the fetus do not get exposed to the RH negative blood of the mother in the first pregnancy as the two bloods are well separated by the placenta. कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं क्योंकि उनमें प्लेसेंटा प्रेजेंट है. However, during the delivery of the first child, there is a possibility of exposure of the maternal blood to the small amounts of RH positive blood of the fetus. डिलीवरी के टाइम वो ब्लड कॉन्टैक्ट में आता है फीटस का और मदर का. In such cases, the mother starts preparing the antibodies against RH antigen in her blood. In case of the subsequent pregnancy, the RH antibodies of the mother leak into blood of the fetus and destroy the fetus RBCs. This could lead to the fetus and cause the severe anemia and jaundice to the baby. ठीक है. The condition is called erythroblast fetalis. इसके बाद erythroblast fetalis will lead to the hemolytic jaundice. Hemolytic jaundice means
हीमोलाइटिक मीन्स सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उससे जो जॉन्डाइस हो रहा है दैट इज़ हीमोलाइटिक जॉन्डाइस. ओके. वैसे तो हाइड्रोड्रॉप्स फर्टालिस भी इसका ही केस है, इसके ही अंडर आता है, बट वी विल नॉट गो इन टू डिटेल्स. Coagulation of blood, because this is not the part of NCERT, that's why I'm not going into depth. Coagulation of blood, ठीक है, this is the important topic. Blood exhibits the coagulation or the clotting response to an injury or trauma. This is a mechanism to prevent the excessive loss of blood from the body. You would have observed a dark reddish brown scum, right, formed at the site of a cut or an injury of a period of time. ठीक है. It is a clot or coagulation formed mainly of a network of threads called fibrins. That network of threads are also called fibrins, in which the dead and the damaged formed elements of blood are trapped. ठीक है. तो ये थोड़ा सा आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना होगा, तो क्योंकि थोड़ा सा इसमें घुमा कर दिया हुआ है. Fibrins are formed by the conversion of the inactive fibrinogens by the plasma by the enzyme thrombin. ठीक है. फाइब्रिन्स किससे एक्टिवेट होते हैं? इनएक्टिव फाइब्रिनोजन से एक्टिवेट होते हैं. एज ए एंजाइम कौन एक्ट करता है? एज ए एंजाइम एक्ट करता है थ्रोम्बिन. तो थ्रोम्बिन कैसे एक्टिव हुआ था? थ्रोम्बिन इन टर्न आर फॉर्म्ड फ्रॉम द अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन. तो थ्रोम्बिन कहाँ से एक्टिव हुआ था? प्रोथ्रोम्बिन से. प्रोथ्रोम्बिन खुद भी इनएक्टिव ही था. ठीक है. एंजाइम कौन सा यूज़ हुआ था? थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन. This complex is formed by a series of linked enzymatic reactions. This is called cascade process, involving a number of factors present in the plasma in an inactive state. An injury or trauma stimulates the platelets in the blood to release the certain factors which activate the mechanism of coagulation. Certain factors released by the tissues at the site of injury also can initiate the coagulation. Calcium plays a very important role in clotting. Calcium is very important, and vitamin K is also important. Vitamin K important to convert the prothrombin to thrombin. Alright. So remember this. Vitamin K is very important, and calcium is also a very important factor for the coagulation of blood.